Hi students, good evening to all of you and welcome to my channel. So today's topic is introducing zoology. So in this topic we can learn about the conceptual aspects of zoology. What are the conceptual knowledges included in zoology? Scientific words, terms related to that of zoology. What is science? It will be described in this session. So first of all, science. So the chapter is introducing zoology. So first of all, what is science? What is science? Science is the systematic knowledge based on experimental observation for an investigation or inquiry. पिले माने आमे जदि विज्ञान बा साइंस जानिबा ताहले प्रथमे तार वर्ड को बुझिबा. साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइरे. Science is derived from Latin word that is saire, means to know. Saire means to know, janiba means to know. So science is derived from the Latin word saire, जार मीनिंग होउची टू नो बा जानिबा. इट इज ए वर्ब and the adjective of this word is scientia. Scientia हला तार adjective जार मीनिंग होउची knowledge. Scientia means knowledge, saira means to know. So science is derived from the Latin word saira, to know, and adjective is scientia, that is knowledge. Knowledge. So science is defined as the systematic knowledge based on experimental observation for an investigation or inquiry. पिले माने हमें साइंस ताकू कहिबा. इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल. आम द्वारा गोटे ज्ञान अर्जन हम सिस्टमेटिकली गोटे नॉलेज बा ज्ञान अर्जन हम केतेबेले से ज्ञान को आम अर्जन करिबा. इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. प्रथम एक्सपेरिमेंट करिबा, ऑब्जर्व करिबा, फाइनली वी गो फॉर दैट कंक्लूजन एंड नो अबाउट इट. दैट इज साइंस. ताहले विज्ञान कहिले आमे ताकू बुझिबा विशेष ज्ञान आहरण करिबा कोनोसी संबंध रे. दैट इज कॉल्ड एज साइंस. वन्स अगेन, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन और inquiry. Then the conclusion is made and that is called as science. ताहले विज्ञान तो कौन आम जानिले. वर्तमान पढ़िबा व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस रिलेटेड टू दैट ऑफ साइंस. विज्ञान रो कौन कौन ब्रांच अछि. सो ब्रांचेस ऑफ साइंस. नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ साइंस. Science is classified into three important branches, three major branches. पिले माने तीनटा ब्रांच अच्छी साइंस रो. गोटे हला सोशल साइंस, दुई रे हला एब्स्ट्रैक्ट साइंस एवं तीन रे हला नेचुरल साइंस. ताहले साइंस को क्लासिफाई करा जायछि तीनोटी ब्रांच रे. फर्स्ट ब्रांच इज सोशल साइंस. Social science. Second is abstract science, and third one is
नेचुरल साइंस। पिले माने सोशल साइंस कहले द साइंस दैट डील्स विथ पॉलिटिकल साइंस, civics and sociology etc. So it includes that study of political science, राजनीति विज्ञान, political science, civics and sociology, समाज विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, नगर विज्ञान है सिविक्स एवं सोशियोलॉजी है समाज विज्ञान। यही सब विज्ञान को आम पढ़ुचे एंड इट इज कमिंग अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। पिले माने एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहले इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। statistics and mathematics, that is abstract science. And third one is natural science, which deals with that nature and natural objects. Nature science deals with nature and natural objects. It deals with nature and natural objects. Further, natural science is divided into two branches. पुणी जदि आम देखा पिले मैंने आउ थे कहीदे branches of science is divided into three branches. First one is social science, which includes that political science, civics and sociology. Second one is abstract science. It includes that statistics परिसंख्यान विज्ञान and mathematics. एवं थर्ड वन इज नेचुरल साइंस which includes that nature and natural objects that are around us. It includes the natural science, and further natural science is divided into two important branches, that is physical science and life science. नेचुरल साइंस पुणी दी प्रकार कौन कौन? प्रथम है फिजिकल साइंस एवं द्वितीय है बायोलॉजिकल साइंस बा लाइफ साइंस। बा बायोलॉजी। So natural science further divided into two branches. First one is physical science, which includes the study of that physics, chemistry, astrology, geology इत्यादि. So it includes physics, chemistry, astronomy, जियोलॉजी एटसेट्रा। फिजिक्स पिले मैंने जानिच पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स, स्पेस साइंस। देन लाइफ साइंस, सेकेंड ब्रांच ऑफ दैट नेचुरल साइंस इज लाइफ साइंस, व्हिच डील्स विथ दैट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस, they are studied under this branch, that is life science बा जीव विज्ञान बा ताकू कहा जाउची बायोलॉजिकल साइंस बा बायोलॉजी। फर्दर बायोलॉजी is divided into two branches, that is botany and zoology. But the life science is divided into three important branches, includes that botany and zoology. पिले माने हमें बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी रे अलग करे देले, किंतु लाइफ साइंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री इंपोर्टेंट ब्रांचेस। कौन कौन? इट ऑल्सो इंक्लूड्स दैट माइक्रोबायोलॉजी। ताले नेचुरल साइंस रो तीनटा ब्रांच कौन कौन? बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पिले माने बायोलॉजी is derived from the Greek word bios and logos. Biology derived from Greek word
bios, Greek word bios means life and logos means study or discourse. So biology is derived from the Greek word bios means life and logos means discourse or to study. Biology was first coined by the word biology. A biology word टा शब्दटा प्रथमे coined by Lamarck and Treviranus. यही वर्ड को प्रथमे किए कॉइन करथिले? Lamarck and Treviranus. So biology word was coined by Lamarck and Treviranus, and major branch of that biology is botany, zoology and microbiology. These are the three branches that includes in life science or biological science or biology. So botany derived from the Greek word botan, which means plant. पिले माने botany is derived from Greek word botan. ये बोटेन रा मीनिंग होउची हर्ब प्लांट्स, छोटा छोटा प्लांट, हर्ब प्लांट. So botany is the study of plant life is called as botany. So botany first observed by Theophrastus and placed the character and structure or form of plants in his book Historia Plantarum. ताले Historia Plantarum Theophrastus लिखिले एवं डिस्क्राइब कले प्लांट रो फॉर्म और स्ट्रक्चर एवं कैरेक्टर विषय, तेणु तांको कहगला फादर ऑफ बॉटनी. सो थियोफ्रास्टस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी हेले थियोफ्रास्टस. So this is all about that botany. So botany is the study of plant life. It is a branch of biology. Father of botany is Theophrastus, as he first observed the form and character of plants in his book Historia Plantarum. Then the second important branch of that biology is zoology. That is derived from the Greek word zoon means animal and logos means discourse. So Historia Animalium was first written by Aristotle with 500 animal species. Hence he is regarded as father of zoology. पिले माने आउ थरे मन रख, बायोलॉजी रो फादर मध्य अरिस्टोटल एवं जूलॉजी रो फादर मध्य अरिस्टोटल. अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी एथि पई कहा जाउची हिस्टोरिया एनिमलियम द्वारा ये 500 एनिमल स्पेसीज को वर्णना करिथिले अबाउट देयर कैरेक्टर, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड इट्स इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. से मानकर उत्पत्ति संबंध रे मध्य ज्ञान प्रदान करथिले, तेणु तांको कहगला फादर ऑफ जूलॉजी. एंड द नेक्स्ट ब्रांच दैट इंक्लूड्स इन बायोलॉजी दैट इज माइक्रोबायोलॉजी. पिले माने माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्मॉल एवं बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस बा लाइफ. So small organisms, those cannot be seen under naked eye. So it requires a microscope for its occurrence. Hence they are called as microbiology
it includes the study of microbes, microorganisms, अणुजीव मान को अनुध्यान करा जाए जो विज्ञान द्वारा ताकू कहिबा माइक्रोबायोलॉजी। एवं माइक्रोबायोलॉजी was first observed by, described by A.V. Leeuwenhoek. So father of microbiology is A.V. Leeuwenhoek. A.V. Leeuwenhoek is father of microbiology. Father of botany is Theophrastus. Father of zoology is Aristotle. Aristotle is regarded as father of biology as well as zoology. Another term you have to know, that is serendipity. पिले माने serendipity कहिले accidental discover or discover occurs by chance. हठात डिस्कवर मन को मन accidentally discover हो गला। So accidental discovery or serendipity. Serendipity means accidental discover, or discovery by chance। ये बाई चांस डिस्कवर हो गला। जड़े डिस्कवर करने उद्देश्य रे एक्सपेरिमेंटेशन करूनथला हठात डिस्कवर है, तेणु सेरेंडिपिटी इज एक्सीडेंटल डिस्कवरीज और डिस्कवरी बाई चांस। द टर्म serendipity was first coined by Horace Walpole in 1754. Yes, in 1754 Horace Walpole first coined the word that is serendipity. And the example is, पिले माने जानी थिबो, discovery of that vaccine by Edward Jenner, सेइथि पई ताकू कहा जाउची फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। पिले माने वैक्सीन कहले ए मिक्सचर दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजेन्स। सो प्रायर टू दैट ऑफ डिजीज वैक्सीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। रोग हबार बहुत पूर्व प्रतिषेधक बा वैक्सीन निया जाए, जो वैक्सीन को एडवर्ड जेनर एक्सीडेंटली डिस्कवर करथिले। एवं पेनिसिलिन इज आल्सो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। इट इज आल्सो सेरेंडिपिटी। देन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी as it will take more time, so just come to these branches. And the first branch is pure branch. The pure branch of biology includes these 21 branches. First one is taxonomy. It is the study of, it deals with the study of arrangement, classification, identification of living organisms. That is called as taxonomy. Second one is morphology, the study of form or structure of organism. पिले माने इटा होची दी प्रकार रो, गोटे होची एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी आ गोटे होची इंटरनल मोर्फोलॉजी। एक्सटर्नली गोटे ऑर्गेनिज्म को बाहर देखिले को भलिया देखा जाए, इट कैन बी स्टडीड थ्रू दैट एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। एवं शरीर भितर थिबा इंटरनल ऑर्गन गुडी को रो स्ट्रक्चर जानिबा पई दैट इज इंटरनल मोर्फोलॉजी। Then third one is anatomy, study of internal structure of an individual। ताले internal structure देखिबा को हेले कोन करा जिवो, डिसेक्शन करके देखा जिवो, एब्डोमेन को काटी कि तार इंटरनल ऑर्गन गुडी को देखिबा को पड़िबो। Then cytology, study of cell is called as cytology। Next one is cell biology, study of cell structure, cellular organelles and its function।
the life of cell, that includes that branch of biology, that is cell biology. Cell cycle madhya kahi haba pile mane cell cycle hela the events that occurring during the life of a cell starting from its formation towards division, cell division पर्यंत आम ताकू कहि परिबा. Then histology, study of tissue. Physiology, study of internal organ and organ system of the body, that is physiology. Then ecology, study of relationship between organism and its environment. So study of environment is called as ecology or environmental science. Then evolution, study of origin of life. जीवर उत्पत्ति जो विज्ञान साहाय्य जानी हम ताहा होची इवोल्यूशन. देन एम्ब्रियोलॉजी, पिले माने एम्ब्रियोलॉजी ताकू कहिबा इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रियो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटिक फ्यूजन बाय फर्टिलाइजेशन, देन all other developmental stages that occurs within the life of an organism, that is embryology, life of that embryo. Then genetics, study of heredity and variation, वंशानुक्रम एवं विभेदायन, which will be transmitted from generation after generation. Next one is paleontology, study of fossil. पिले माने दी प्रकार पैलेंटोलॉजी, गोटे होची प्लांट पैलेंटोलॉजी आ गोटे होची एनिमल पैलेंटोलॉजी. एनिमल पैलेंटोलॉजी कहिले एनिमल फसिल को स्टडी करिबा एवं प्लांट पैलेंटोलॉजी कहिले प्लांट फसिल. नेक्स्ट वन इज एथोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट. निजस्व बासस्थली एनिमल मानकर बिहेवियर को भाया हम, इट कैन बी स्टडीड थ्रू द ब्रांच ऑफ दैट बायोलॉजी, इट इज एथोलॉजी. देन नेक्स्ट वन इज एथनोलॉजी. एथनोलॉजी डील्स विथ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मनुष्य जातिर उन्नति पाई जो विज्ञान काम करुच्ची ताहा होची एथनोलॉजी. नेक्स्ट वन इज यूजेनिक्स, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू जेनेटिक प्रिंसिपल्स. बाय अडॉप्टिंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स the human race can be improved through this branch of biology. Then euthenics, euthenics is the development of environmental condition and organism. And next one is euphenics. Euphenics deals with the study of genetic improvement, dysfunction of the body, genetically it can be improved through genetic engineering. ताहले जदि कौन सी बॉडी फंक्शन रे डिफेक्टिव थिबा बा जीन रे डिफेक्टिव थिबा से डिफेक्टिव जीन को ट्रीटमेंट करिबा पई गोटे न्यू जीन ता जगह इम्प्लांट करा जिवो, जहा द्वारा डिजीज कैन बी करेक्टेड थ्रू दिस ब्रांच ऑफ यूफेनिक्स. देन बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ग्लोब. पृथ्वीर विभिन्न स्थान में बास करुवा प्राणी मानकर बासस्थान विषय जानिबा, सेमानकर डिस्ट्रीब्यूशन कौ जगार अच्छी ताहा जानिबा, दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी. देन नेक्स्ट वन इज मेराइन बायोलॉजी. मेराइन पिले माने मेराइन रा मीनिंग होची सी बा समुद्र एवं बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ साइंस. सो मेराइन बायोलॉजी डील्स विथ the study of marine animals that found in sea. It is of two different types, that is marine plants and marine animals. Marine botany deals with the marine plants and marine zoology deals with the marine animals. Then next one is pathology, study of disease causing pathogens. जो पाथोजेन बा अणुजीव गुड़िक शरीर मध्य रोग करती सेमानक विषय जानिबा बा रोगर कारण जानिबा केउं पाथोजेन द्वारा ताहा होउची, दैट इज कॉल्ड एज पाथोलॉजी, निदान करिबा. देन द नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनी, द स्टडी ऑफ डिफरेंट. फाइलोजेनी मीन्स द स्टडी ऑफ ancestral history of an organism.
So let us come to the next branch of biology, that is advanced branch of biology. The first one is molecular biology, which deals with the study of biochemical molecules that possesses within the body of all living organisms. ताहले प्रत्येक अणु जहाँ शरीर तैयारी जो अणु द्वारा से जैव रासायनिक अणु को अनुध्यान करवा, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेकेंड वन इज स्पेस बायोलॉजी, द इफेक्ट ऑफ स्पेस ऑन एनिमल, द स्टडी ऑफ दैट इज कॉल्ड एज स्पेस बायोलॉजी. नेक्स्ट वन इज एक्सोबायोलॉजी. एक्सोबायोलॉजी मीन्स on the outer space which living organisms are found. To study of them, that branch of biology is called as exobiology. Fourth one is biotechnology, the application of technology in biology for improvement in their production, in their activities, that is called as biotechnology. Next one is genetic engineering, manipulation of gene through genetic engineering. जो डिफेक्टिव जीन बॉडी भितर अच्छी से डिफेक्टिव जीन बदल रे गोटे हेल्दी जीन को इम्प्लांट करेबा बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट ब्रांच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बायोलॉजी. नेक्स्ट वन इज टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. शरीर मध्य विषाक्त पदार्थर प्रभाव कौन रोचे ताहा जो विज्ञान द्वारा जाना जाए ताहा होची टॉक्सिकोलॉजी. नेक्स्ट वन इज जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो विज्ञान पढ़ा द्वारा आमे स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, एजिंग प्रोसेस बा बयस को जानी हब ताकू कहती जेरेंटोलॉजी. इम्यूनोलॉजी, पिले माने इम्यूनोलॉजी है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल. इम्यून सिस्टम कहले इट इज द रेजिस्टेंट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स डिजीज कॉजिंग पैथोजेन, बा शरीर प्रतिरोध व्यवस्था को जो विज्ञान द्वारा पढ़ बुझा जाए ताकू कहा जाउची इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट इज क्रायोजेनिक्स. क्रायोजेनिक्स मीन्स द इफेक्ट ऑफ कोल्ड इन एनिमल्स बा ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक ठारे कोल्ड बा थंडार इफेक्ट कौन थाए ताहा जो विज्ञान द्वारा पढ़ा जाए ताहा होची क्रायोजेनिक्स. नेक्स्ट वन इज क्रायोबायोलॉजी, द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिड्यूस्ड टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोबायोलॉजी. नेक्स्ट वन इज यूरोबायोलॉजी, द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड मीडियम, दैट कैन बी स्टडीड थ्रू दैट यूरोबायोलॉजी. नेक्स्ट वन इज चीरोलॉजी. चीरोलॉजी is the communication biology which communicates through signals or signs to that of dumb and deaf individuals, and the जो माने मूक बधी रही थे से ठार द्वारा जनइबा जो विज्ञान द्वारा संभव हुए ताहा होची चीरोलॉजी. एवं डैक्टियोलॉजी, पिले माने देखि न्यूज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड्स, जो माने बधिर जो मान कान को शुभुनी से कम्युनिकेट बा से जनइबा अंगुलीर चिन्ह को व्यवहार करा जाए बा अंगुली को व्यवहार करा जाए, जो विज्ञान द्वारा अंगुली निर्देश करी डीफ बा शुभु नथिबा लोक माननकु जना जाए किछि इन्फॉर्मेशन, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज डैक्टियोलॉजी. सो द नेक्स्ट ब्रांच इज इंटर रिलेटेड ब्रांच, the biology that integrates or interrelated with other branch of science for its betterment. And the first one is biophysics, application of physics in biology. Application of physics, its law in biology, that is biophysics. Second one is biochemistry, application of chemistry in biology. And third one is biometrics, application is of statistics in biology. Then the next branch is organ oriented branch, which deals with different body organs of individual. And the first one is angiology, study of blood vessels. Angiology means study of blood vessels. रक्तनली गुड़िक विषय जो विज्ञान द्वारा अनुध्यान करा जाए ताको कहती एंजियोलॉजी. सेकेंड वन इज ओस्टियोलॉजी, पिले माने ओस्टियम मीनिंग होची बोन,
तेणु स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ओस्टियोलॉजी। देन थर्ड वन इज डर्माटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मा मीन्स स्किन, एवं जो बायोलॉजी द्वारा आमे स्किन विषय जापर ताको कहते डर्माटोलॉजी। देन कार्डियोलॉजी, आज कार्डियक ऑर्गन इज मेंट फॉर हार्ट, इट इज द ग्रीक वर्ड, सो स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। देन कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोलॉजी। Then hematology, study of blood and blood related diseases. Next one is hepatology, hepatic organ that present in our body is liver। ताहले जो विज्ञान द्वारा यकृत विषय जानी हम that branch is hepatology। gastroenterology, the branch of science that deals with gastroenterology means stomach and intestine which comprises that alimentary canal बा खाद्य नली संबंध रे जानिबा। नेक्स्ट वन इज गायनोकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन इन केस ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज एंड्रोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट किडनी। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ न्यूरॉन, स्नायु विषय जानिबा। नेक्स्ट वन इज मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मायोलॉजी। नेक्स्ट क्रानियोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रानियम खपुरी बा ब्रेन बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्थाल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आई इज ऑप्थाल्मोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, it deals with the study of teeth। next one is urology, study of urinary bladder and ureter is urology, urinary tract madhya kahi pariba। then dysteleology, the branch of science that deals with vestigial organs of the body। पिले माने इठे कहि रखे vestigial organ गुडी कहला जे organ गुडी क आम पाखरे अछि बट इट इज फंक्शनलेस, किंतु आम पूर्वज मान यही अर्गान गुड़िक कार्यक्षम थिला, वर्तमान आउ काम करूनी। आम बॉडी भितर जमिति वेस्टिजियल अर्गान है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आई लीड एंड ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट वेस्टिजियल अर्गान इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट वन इज राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज। ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर। then desmology, study of ligament। arthrology, it is derived from Greek word arthros means joint, study of joint is arthrology। otology, study of ear। sonology, study of hearing। sonography, study of ultrasound imaging। then obstetrics, study of that woman and its care during and after delivery और गिवेन बार्थ ए बेबी, छुआ जन्म होगा पर वोमेन मानकर केयर नवा जो ब्रांच ऑफ साइंस द्वारा निया जाए दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। देन द नेक्स्ट वन इज एनसेफालॉजी, इट इज इम्पोर्टेंट वन। एनसेफालन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मीनिंग ब्रेन, सो स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज एनसेफालॉजी। Then the next branch is organism oriented branch। first one is protozoology, organism oriented branch माने which organisms concerned with that biology। first one is protozoology, it deals with the study of protozoans, आदि प्राणी मानक विषय अनुध्यान करिबा। द्वितीय रे हला parazoology, the branch of biology that deals with sponges बा छिद्राल देही प्राणी मानक अनुध्यान करिबा। देन हेलमिन्थोलॉजी, इट इज कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ हेलमिन्थ्स, कुर्मी मानक विषय रे पढ़िबा। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन होस्ट। पिले माने पैरासाइट बा परजीवी साधारणतः दी प्रकार, गोटे हूँ एक्टोपैरासाइट आ गोटे हूँ एंडोपैरासाइट। पैरासाइट ताकू कहिबा व्हिच ऑर्गेनिज्म takes its nutrition
एंड हैबिटेट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एवं जो ऑर्गेनिज्म रु नियंती ये खाद्य एवं बासस्थान पर निर्भर करती ताकू पोषक बा होस्ट बॉडी कहा जाए एवं पारासाइट बाहर जो माने लगती एक्टोपारासाइट शरीर भितर बा होस्ट बॉडी भितर थिबा पारासाइट को कहा जाउजे एंडोपारासाइट। पिले माने एक्टोपारासाइट रो एग्जांपल हैला लाउस बग दीज आर द एक्टोपारासाइट्स ओडस उकुणी एवं एंडोपारासाइट हैला आमर फैसियोला हेपाटिका लिभर फ्लू को जहाँ कहूचे हुक वर्म पिन वर्म दीज आर द एंडोपारासाइट्स दैट रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, नेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ नेमाटोहेलमिन्थेस और राउंड वर्म गोल कुर्मी। नेक्स्ट वन इज क्निडोलॉजी स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स, एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज मालाकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलुस्का, लिम्नियोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज कंकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलुस्कान सेल्स, मोलुस्कार बाह्य आवरण मेड अप ऑफ दैट कैल्शियम कार्बोनेट तार स्टडी करवा होची कंकोलॉजी। इक्थायोलॉजी पिले माने इक्थायस र मीनिंग होची माछ बा फिश, स्टडी ऑफ इक्थायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक। साउरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड्स एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, बार्ड मानकू ऑर्निथिन कहा जाउची आज द nitrogenous waste eliminated from their body in the form of an amino acid that is ornithine। से पक्षी मानकू ornithine बा ornithology study of that birds। mammalogy study of mammals स्तन्यपायी प्राणी मानक संबंध में पढ़िबा एवं एरोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स उड़ंता एनिमल मानक विषय पढ़िबा एरोबायोलॉजी। आक्रोलॉजी स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स उकुणी एवं टिंक विषय पढ़िबा दैट इज आक्रोलॉजी। एंड कार्सिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्रस्टासियंस, क्रस्टासियन माने कंकड़ा जातीय प्राणी मानक विषय पढ़िबा। पिले माने भाइरोलॉजी स्टडी ऑफ भाइरसेस। आराक्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर है बुढ़ियाणी जो विज्ञान द्वारा स्पाइडर संबंध में आम ज्ञान आहरण करवा ताहा होची आराक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज लेपिडोप्टेरोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मॉथ एंड बटरफ्लाइज। मॉथ और बटरफ्लाइज पिले माने जानिछ प्रजापति। एंड नेक्स्ट वन इज मर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ ant and last one is anthropology study of human culture and their evolution। So this is the organism oriented branch and the next branch is applied branch। So the applied branch is first one apiculture। Apiculture is rearing of Apis indica, rearing of honey bee and different varieties of honey bee that can be reared। Apis indica, Apis dorsata, Apis florea, Apis mellifera। So the rearing of honey bee for production and procurement of honey जो विज्ञान द्वारा आम महुमाछी पालन करी से महू एक्सट्राक्शन करवा दैट इज कॉल्ड एज एपिकल्चर। नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क थ्रेड्स जहाँ द्वारा आम सिल्क सूता पाई पारे सिल्क वर्म को रियर करके सेरिकल्चर। पिसिकल्चर द रियरिंग ऑफ एडिबल फिशेस फॉर इन मैन मैनेज्ड एक्वाकल्चर पोखरी और जलाशय मानकर मधुर जलर माछ को चाष करवा दैट इज कॉल्ड एज फिशिकल्चर। ल्याक कल्चर, रियरिंग ऑफ ल्याक इनसेक्ट लाख उत्पादनकारी कीट गुड़ी को पालन करवा से लाख पाइबापी लाखरे मूर्ति बैंगल एगुड़िक सब तैयारी हुए। पोल्ट्री, रियरिंग ऑफ दैट बर्ड्स फॉर फ्लेश एंड मीट दैट इज कॉल्ड एज पोल्ट्री। नेक्स्ट वन इज पर्ल कल्चर, द प्रेसियस सब्सटेंस मोती चाष करवा। रियरिंग ऑफ मलुस्का टू गेट दैट पर्ल
बाइभल्व मलुस्कान ताकू कहा जाउची शामुका जातीय प्राणी माननकू कल्चर करैबा द्वारा सेतिरु मोती उत्पादन करिबा एवं आर्टिफिशियली आजिकली मोती उत्पादन होउची हमर सिफा कौशल्या गंगठारे तार इंस्टीट्यूट अछि जेउठै पर्ल कल्चर करा जाउची। देन द नेक्स्ट ब्रांच इज अदर ब्रांच। फर्स्ट वन इज ओंकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कैंसर। नेक्स्ट वन इज कालोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। कॉप्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सक्रेटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम गुड़िकर मल विषय अनुध्यान करवा। रेडियोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन ऑर्गेनिजम, ताहा होची रेडियोबायोलॉजी। इकोनॉमिक बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली improved organisms like that of poultry, lac insect, जहाद्वारा आम बेनिफिशियल प्रोडक्ट पाइपर जो एनिमल मानक ठारू से पालन करवा, दैट इज इकोनॉमिक जूलॉजी। देन फिजियोथेरापी, द डिफेक्टिवनेस ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन एंड फंक्शन थ्रू एक्सरसाइजेस, दैट इज फिजियोथेरापी। देन फ्रेनोलॉजी, इट डील्स विथ दैट mental faculty. Next one is phenology, which deals with migration of birds, seasonal migration of birds, that is phenology. And last but not least, that is nidology, which deals with the bird nest. Students, here I will announce the name those who are qualifying. First of all, the answer is here. The first question, growth is the first question answer है growth, second है class, third है kingdom, fourth है species, fifth है 7, 6 है category, 7 है identification and nomenclature, 8 नंबर प्रश्नर उत्तर है मेटाबॉलिज्म, 9 नंबर प्रश्नर उत्तर है फैमिली एवं 10 नंबर प्रश्नर उत्तर है how many living species are known, 1.7 to 1.8 million। पिले माने यही क्वेश्चन रा आंसर अनेक पिला पठाई छंती, ता भितरु जो माने अधिक मार्क रखी 9 आउट ऑफ 10 सेमानंक नाम घोषणा करुची। शिवानी महापात्र 9 आउट ऑफ 10, वर्षाराणी साहू, मौसुमी, विद्युतलता साहू, देवप्रकाश, प्रज्ञा परमिता, ज्ञानरंजन मल्लिक एंड लोपामुद्रा साहू। दीज स्टूडेंट्स securing 9 out of 10 and those secured 8 out of 10 they are अनन्या राय, राका, आयुष महाराणा, रितेश महांती, शिवराज प्रधान, देन मनमयी बेहरा। So once again congratulate to all of you those are scoring better and hope for the next examination which will be question will be given in my next video. Thank you.